managing the booths on the day of election is one of the reasons why a party candidate wins or loses. I'm not saying that it is all, but if we do not manage a booth, then definitely our chances of getting a good response from that booth is very slim. In any particular constituency, Lok Sabha constituency, there would be around 1500 to 2000 booths, and each booth in a particular constituency would have around 1000 votes. This is a normal distribution of votes and polling booths in a constituency. What happens is that each booth requires a person. A person is allowed from a party or from a candidate to sit inside the booth. Why are they there? They are to ensure that there is no fake voting. So if I belong to a particular area where there are 1000 votes, they are coming to vote into that particular booth. I, as a resident of that area, would know whether Pran stays here or not, whether Bhakti stays here or not, whether Suresh stays here or not, whether this uncle, this aged person who is coming actually belongs to this booth or to some other booth. Because one of the biggest reasons of malpractices in election is fake voting, where people get multiple votes made, or they actually go and vote by impersonating some other voters. So if you are there, then the officer announces, now Pankaj has come to vote. So every person who is sitting there representing a candidate can see and say that he is not Pankaj if he is actually not Pankaj. And at that point, presiding officer will have the right to verify before the vote is casted that whether he should be voting or not. So that is one of the reasons for why do we have polling booth agents. Second reason is that in India, even now, there is a huge percentage of floating votes. And believe me, even in my days, even when I used to vote before Aam Aadmi Party, at times I was not clear till I reached to the inside the polling booth that whom should I be voting for. And this is true for large section of voters even today. So to say that, what is a polling center? पोलिंग सेंटर ऐसी एक चीज होती है जिसमें जो एक स्कूल हो सकता है, कोई क्लब हो सकता है, कोई कम्युनिटी सेंटर हो सकता है, जहां पे एक से ज्यादा पोलिंग बूथ के लोग वोट करने आते हैं. हमारी अगर एक टीम उस पोलिंग सेंटर के बाहर बैठती है तो जो लोग वोट देने आते हैं नॉर्मली वो ये देखते हैं कि भाई मेरा नंबर क्या है, और वो आप देखोगे अगर आपकी एक टीम वहां बैठी है, वो उनको ग्रीट कर रही है, उनको हेल्प कर रही है समझाने में कि आपका ये बूथ नंबर है, आपका ये सीरियल नंबर है आपके बूथ लिस्ट पे, तो इट इज अ जनरल परसेप्शन, लोगों का ये मानना है कि जो फ्लोटिंग वोट होते हैं वो आपके लिए तब्दील हो जाते हैं. तो ये दूसरा कारण होता है. तीसरा कारण ये भी होता है कि हम कन्वेंसिंग नहीं कर सकते वोटिंग के दिन पे, लेकिन अगर हम जानते हैं कुछ लोगों को तो हम कह सकते हैं भाई आप लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है, कम से कम आइए और आके वोट तो करिए, चाहे किसी के लिए भी करिए. तो ये तीन चीजें होती हैं जो पोलिंग डे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब मैं जाता हूं कि हमें करना क्या पड़ेगा. आप में से कई लोगों ने कहा कि आपके पास कोई भी काम नहीं है, आप लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग काम करना चाहते हैं. तो मैं आज फिर कहता हूं कि अगर आप लोगों के पास समय है, आप लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो टेक ओनरशिप ऑफ द बूथ इन विच यू स्टे. आप अपने बूथ की जिम्मेदारी लें. ये जिम्मेदारी लें कि जाके हर एक व्यक्ति से मिलें और उसको बताएं कि आपके वोटिंग लिस्ट पे ये नंबर है, ये नाम है. और पोलिंग बूथ एजेंट बनने के लिए एक फॉर्म भरना पड़ता है. मैं वो फॉर्म आपको दिखा रहा हूं. ओके, सो ये एक फॉर्म है जिसको फॉर्म 10 बोलते हैं. ये अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट, यानी पोलिंग एजेंट के अपॉइंटमेंट के लिए ये फॉर्म को भरा जाना होता है. इसमें इस फॉर्म में कैंडिडेट के सिग्नेचर होते हैं, मेरा कर्सर जहां पे है, और या इलेक्शन एजेंट के सिग्नेचर होते हैं. और यहाँ पे जहां पे सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे जो व्यक्ति पोलिंग एजेंट बन रहा है उसके सिग्नेचर होते हैं. कि एक बूथ पर एक से ज्यादा पोलिंग एजेंट, यानी कि 2 पोलिंग एजेंट हम बना सकते हैं. तो एंड जो दूसरा पोलिंग एजेंट है वो पहले का रिलीवर बन सकता है. तो उन दोनों के पास ये वाला फॉर्म होना जरूरी है. और अंदर जाके प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास इलेक्शन डे पे उसे फिर से वहां पे एक बार ये सिग्नेचर दोबारा करने पड़ते हैं. जैसे ये सिग्नेचर किया हुआ है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास भी जाकर एक बार और सिग्नेचर करना पड़ता है. और उसके बाद
अब पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। पोलिंग एजेंट क्या 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 करता है, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। उसके पास अपना एक वोटर कार्ड होना जरूरी है, फोटो आईडी कार्ड या वोटर कार्ड होना चाहिए। वो उस बूथ का एक वैलिड वोटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसका रीजन ये है जिससे वो वहां पे जो वोट देने आते हैं, he should be able to recognize them, he should be able to know that ये लोग इसी बूथ के हैं। उसके पास अपॉइंटमेंट लेटर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट लेटर जो मैंने अभी आपको दिखाया था फॉर्म 10, वही उसी को अपॉइंटमेंट लेटर बोलते हैं। कैंडिडेट का काम है कि पोलिंग डे से पहले ही हर बूथ एजेंट को एक ऐसा फॉर्म साइन करके उसके नाम के साथ दे दे, जो कि फॉर्म वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास लेकर जाएगा। एक ब्रास सील होती है, हर कैंडिडेट को या उसके इलेक्शन एजेंट को बूथ के हिसाब से एक ब्रास सील बनवाने की जरूरत है। छोटी सी ब्रास सील होती है जिसके हेड पर लिखा होगा आम आदमी पार्टी। ये ब्रास सील का काम ये है कि जब आपकी वोटिंग पूरी हो जाए तो ब्रास सील से उस डब्बे को, उस मशीन को सील किया जाता है। तो हर पार्टी के व्यक्ति अपना अपना सील यूज करके उस पर सील कर देता है, जिससे काउंटिंग के दिन आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि ये इस बॉक्स के साथ टैंपरिंग तो नहीं हुई है। उसके पास पोलिंग एजेंट के पास पेन और पेंसिल होना चाहिए। छोटे छोटे पेपर स्लिप्स होने चाहिए। पेपर स्लिप्स इसलिए होने चाहिए क्योंकि अगर कोई आपके पास आता है कि मेरा नंबर क्या है बूथ पे, वोटिंग नंबर, तो आप उसको लिखकर, देखकर, ढूंढकर और लिखकर उसको दे सको। तीसरा, आपके पास उस बूथ के इलेक्टोरल रोल की फोटोकॉपी होनी चाहिए जिसमें फोटो लगे हों, जिससे आप उस व्यक्ति को देखकर फटाफट आइडेंटिफाई कर सको कि उसका कौन सा बूथ है। साथ ही में जो व्यक्ति अंदर बैठता है वो टिक मार्क करता रहता है कि कौन कौन व्यक्ति आकर अपना वोट डाल के जा चुका है। इससे हमें यह भी पता रहता है कि कौन अभी तक वोट डालने नहीं आए हैं। और ये अनेक्शर 1 है, थोड़ा टेक्निकल है, मैं इसको छोड़ देता हूं। ये इलेक्शन कमीशन का काम है, आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। नाउ आई मूव टू माय सेकंड एंड द लास्ट स्लाइड। पोलिंग शुरू होने से पहले आप वहां पहुंचकर इंश्योर कर लें कि मशीन ठीक है, मशीन पे काउंटिंग ठीक हो रही है, जो बटन दब रहा है उसके हिसाब से ही काउंटिंग हो रही है, या आपको वहां पे इंश्योर करना है। और जब पोलिंग हो जाए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बूथ में कुल कितने वोट पड़े। सो एट द क्लोज ऑफ पोल आपको ये मालूम होना चाहिए कि कितने वोट पड़े और आपने वो मशीन सील कर दी है अपने ब्रास सील के साथ। इतना ही काम होता है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, आप सबको ये समझना होगा, ये जानना होगा कि ये पोलिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, बहुत ही जरूरी मुद्दा है। आप इसको बिल्कुल बहुत ही सीरियसली लें और इंश्योर करें कि आपके आपके इलेक्शन प्रोसेस में आप हर बूथ पर कम से कम 2 लोगों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसमें से एक व्यक्ति अंदर जाएगा और एक व्यक्ति बाहर टेबल पर बैठे, जिससे आप पूरा का पूरा इलेक्शन अच्छे से मैनेज कर पाए। If somebody wants to volunteer for booth management, how do they go about signing up to become a volunteer? तो अगर आप बूथ मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप इलेक्शन में जो कैंपेन मैनेजर है या इलेक्शन एजेंट है कैंडिडेट का, आप उससे संपर्क करें। बिकॉज ये वाला काम वैसा काम है जिसमें जब तक आपके पास वो पेपर नहीं होगा, फॉर्म 10 जो मैंने आपको दिखाया था, आप बूथ मैनेजमेंट नहीं कर सकते। आप फिर भी बाहर जाके बैठ सकते हैं। जो बाहर टेबल लगी होती है बूथ के बाहर, आउटसाइड 100 मीटर्स के अंदर कोई भी नहीं बैठ सकता। Beyond 100 meters, there is a space where all parties put their table along with a banner. So, हर टेबल के ऊपर एक बैनर लगा हो सकता है of the size 4x3. उस साइज का हम एक बैनर लगा सकते हैं जिसमें आम आदमी पार्टी कैंडिडेट का नाम और झाड़ू बना हो सकता है। एंड देन आप वहां बैठ सकते हैं, जो भी लोग आए आप उन्हें हेल्प करें। दैट इज इन इटसेल्फ अ ह्यूज टास्क। अगर आपने उस दिन 50-100 वोटर को कन्वर्ट कर दिया बाय योर गुड मैनर्स, by your pleasing smile, then understand that you have done your job. Here's a good question. Can the AAP cap be worn in the polling booth? As per Election Commission's guidelines, we can wear the cap beyond 100 meters. We cannot wear that cap with Aam Aadmi Party written on it or Jhadu on it within 100 meters of the polling booth. This is as per the guidelines of Election Commission. However, I can tell you that if you wear that, you are bound to have lot of resistance from other parties.